welcome back. Today we will be starting the revision of chapter 2, that is power or exponent. Student, this is a very important chapter, so please pay attention and carefully have a thorough revision of this chapter. So let's start. Suppose a number, if it is written in the form of, see this one example, 3 upon 4 into 3 upon 4 into 3 upon 4. Now see, 3 upon 4 into 3 upon 4 into 3 upon 4 is written 3 times. So it can be written as 3 upon 4 to the power 3. Correct. Now see, where 3 upon 4 is a base and 3 is the power. Or we can say that it is A and this is n. Suppose हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Now suppose करो a into a. This is written over here, a into a into n times. Means जो आपका a है वो n times multiply हो रहा है. So we can write it as a to the power n. So where a is the base and n is the power, correct? And a is a real number and n is a positive integer. So this is called as a to the power n को हम क्या कहते हैं? Exponential form. What we say it? Exponential form. और expanded form क्या होती है? When we write it in this way. Suppose 3 upon 4 to the power 3 दिए और इसकी expanded form क्या होगी? 3 upon 4 into 3 upon 4 into 3 upon 4. Clear till here? Now see what we are going to do. Next is the laws of exponent. So the first law is x to the power a into x to the power b is equals to x to the power a plus b. Now here see, x बेस क्या होगा? बेस सेम होगा और पावर्स क्या होंगी? पावर्स डिफरेंट होंगी. एंड जब दिस विल हैपन देन जो आपकी पावर्स हैं और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है वो पावर्स ऐड हो जाती है. सो इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर a प्लस b. स्टूडेंट्स, आई हैव टू एक्सप्लेन यू वन थिंग. डे बिफोर yesterday I have given you one question in which you have to compare. So I have given you 3 to the power 3 and 4 to the power 3. So many of the students what they have done, उन्होंने 3 to the power 3 को 3 into 3 कर दिया था और 4 to the power 3 को 4 into 3 कर दिया था. So I have to tell you that was totally wrong. 3 to the power 3 का मतलब है 3 times मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 to the power 3 का मतलब है 4 3 times हो रहा है. सी द डिफरेंस. 3 into 3 अगर आप करोगे तो 9 आएगा और 3 into 3 करोगे तो आपका 27 आएगा. So please pay attention to that thing. Correct. Now second one law is x to the power a divided by x to the power b. So same thing, बेस कॉमन है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड होता है तो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाता है. ठीक है. अब इसमें भी एक केस होता है, अगर पहली वाली पावर ग्रेटर है, ठीक है, अगर पहली वाली पावर मीन्स a अगर ग्रेटर है तो x टू द पावर a माइनस b होता है. और सेकेंड केस क्या होता है, अगर b ग्रेटर है तो 1 अपॉन x टू द पावर b माइनस a हो जाता है. Remember these two formulas very properly. You can see the examples here. 1 upon 5 to the power 5 divided by 1 upon 5 to the power 4. ठीक है. अब नाउ सी, बेस सेम थी, डिवाइड था तो पावर्स माइनस होंगी. अब यहाँ पे a ग्रेटर है तो a टू द पावर 5 माइनस 4 मीन्स 1 अपॉन 5 टू द पावर 5 माइनस 4 हो गया. अब b से पार्ट में क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 स्मॉलर है एंड 6 ग्रेटर है, मीन्स a स्मॉलर है b ग्रेटर है तो 1 अपॉन में हो जाएगा. सो 1 अपॉन 5 6 माइनस 4 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 5 होल पावर 2. Clear this one law? Now see the third one law. Third one law is x to the power a whole power b. See very carefully. X is a number, x is a real number. Means अब क्या है, एक नंबर गिवन है उसकी पावर है और होल पावर की भी पावर है. Then what will happen? These both the powers will get multiplied. Means 1 upon 5 आपका वैसे ही रहेगा और 2 into 3 means क्या हो जाएगा? 6. See the fourth law. फोर्थ लॉ इज एक्स वाई टू द पावर है. इसमें क्या था, इसमें बेस 1 होता था, पावर्स 2 होती थी. इसमें बेस 2 है और पावर 1 है. तो जो पावर आउटसाइड है वो इनसाइड वाले बोथ द नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. करेक्ट. x इंटू वाई टू द पावर a इज इक्वल्स टू x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर a. सो सीधा नंबर 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 6 होल पावर 3. तो 3 अपॉन 4 की पावर 3 हो जाएगी और 5 अपॉन 6 की पावर 3 हो जाएगी. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 1 इज अ बेस एंड 10 इज अ एक्सपोनेंट. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर बेस 1 है तो आप एक्सपोनेंट को लाख में ले लो, करोड़ में ले लो, डजेंट मैटर, आंसर आपका हमेशा 1 रहता है.
क्लियर दिस वन लॉ. सी द नेक्स्ट वन. अब क्या है, अभी क्या था, बेस 1 था, अब क्या है, पावर 1 है. सेम थिंग, अगर पावर 1 होगी, डजेंट मैटर इनसाइड आपका कौन सा नंबर है, इफ इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव द नंबर विल रिमेन सेम एज इट इज़. Now see the next one, that is negative exponent. This is very important. Well, now what is negative exponent? Suppose the number is example we have taken x upon y to the power -1. अब -1 का मतलब क्या होता है कि आपकी पावर नेगेटिव है. तो जब पावर नेगेटिव होती है तो वॉट एवर नंबर, जिस नंबर की पावर नेगेटिव है उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है. नाउ सी x अपॉन y टू द पावर 1 था, सो व्हेन वी आर गोइंग टू डू द रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x. क्लियर टिल हियर. See one more example, 5 upon 6 to the power 1, so 1 upon 5 upon 6. और जब 1 डिवाइडेड बाय 5 upon 6 होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो आपका 6 upon 5 आंसर आएगा. So I hope it is clear till here. Now move to the next one topic. Now the question which I have taken is verify the following. See, it is given to you 8 to the power 5 divided by 8 to the power -3 is equals to 8 to the power 5 minus का 3. Now see how we are going to do it. This is base same powers different. जब बेस सेम होता है, पावर्स डिफरेंट होती हैं, तब हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है. सो हाउ कैन वी राइट इट, 8 टू द पावर 5 माइनस का 3. ठीक है. अब क्या हो गया हमारा, 8 टू द पावर 5 माइनस का 3, व्हाट विल हैपन, इट विल बी 8 टू द पावर 5 माइनस का 3. यहाँ से ये वेरीफाई हो गया. सी दिस वन इज वेरीफाइड. एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन वेरीफाई इज गिवन तो आप एक साइड लेके चलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर LHS. करेक्ट. या तो LHS RHS के इक्वल प्रूफ करिएगा या RHS LHS के. ना सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 2/3 टू द पावर -3, 2/5 टू द पावर -3. मैंने यहाँ पे LHS लिया. ठीक है. नाउ सी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवीजन है, तो क्या होता है माइनस. सो इट कैन बी रिटर्न एज, पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे -3 है, -5 है. नाउ इट कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन, पहले मैंने क्या कहा है आपको, माइनस साइन रिमूव करते हैं. ठीक है. तो रिमूव किया तो अपोजिट हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5/2 हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, 5/2, बेस सेम हो गया और पावर एक की 3 है, एक की 5 है. सो 5 माइनस 3, करेक्ट, दैट विल बी -3 + 5. 5 माइनस 3 को -3 + 5 लिख सकते हैं, बिकॉज दिस ओनली वी हैव टू प्रूव इट. क्लियर दिस वन. Now the next topic is uses of exponents to express large number and small numbers in standard form. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दिस वन, a इंटू एक्स टू द पावर n. सपोज एग्जाम्पल्स यू कैन सी, अब आपको 34.0 दिया है. ठीक है. अब इस पॉइंट को आप बैक साइड मूव करोगे, लेफ्ट साइड, और जब भी लेफ्ट साइड मूव करते हैं सो दैट हम क्या करते हैं, रिमेंबर, हम उसे डिवाइड कर देते हैं. जब हम डिवाइड करते हैं तभी तो हम बैक साइड मूव करते हैं. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3.4 इंटू 10 मीन्स 3.4 इंटू 10 टू द पावर 1. सी दिस वन एग्जाम्पल 0.34. अब ध्यान रखिएगा, जब आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होती है, जब आप राइट साइड मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट कन्फ्यूजन दैट यू हैव एंड यू मेक सो मैनी मिस्टेक्स रिगार्डिंग दिस. सो अब ये क्या हो जाएगा, 3.4 इंटू 1/10. पॉइंट एक नंबर के बाद आएगा. ठीक है. सो इट विल बी 3.4 इंटू 10 टू द पावर -1. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं डेसिमल के, ये मैंने डेसिमल के बताया है. डेसिमल के लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, और डेसिमल के राइट साइड मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव आएगी. रिमेंबर दिस थिंग. करेक्ट. नाउ सी द एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ सी, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव, राइट साइड मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव. अब देखिए यहाँ पे कितनी पावर आएगी और कितने पावर के बाद आपका पॉइंट आएगा. नाउ सी 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, 8.32 आ रहा है. सो 8.32 इंटू 10 टू द पावर 6, दिस विल बी योर आंसर. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So this will be 4.09 into 10 to the power -12. So like this you can do it. It is very simple and very easy. Please just remember कहाँ पे पावर माइनस होती है, कहाँ पे प्लस होती है, because student this is a MCQ type question. So such type of questions are very important for you to pay attention and keep in mind the rules which we are going to follow. Now for as a homework what you are going to do today, you are going to start exercise revision of exercise 2.1
plus all the chapters and MCQs, chapters and revision questions which are given at the end of this chapter. And if you face any problem while solving this chapter, then you can contact me. Thank you all and have a nice day.